Hello guys, so welcome to the Modern India ka history session, and my name is Tamsil Hussain. I'm preparing for UPSC Civil Services 2022, and I'm making this video in an attempt to basically it's a revision kind of video. I think एक महान philosopher ने कहा था to teach is to learn, and if you can teach a subject at one go, I think you have a complete mastery over it. And so it's an attempt of revision basically, तो आपको भी benefit हो जाएगा इससे. And I think मुझे भी benefit हो जाएगा. So basically when we talk about modern India, what is modern India? So basically you will see Indian history can be divided into three parts: ancient, medieval, and modern India. So basically medieval India starts from the advent of Delhi Sultanate and Muhammad bin Qasim ka attack, and after that so on and so forth, and it basically begins from the 700s, Rashtrakuta and Rashtrakuta Pala empires ka struggle, and then that kind of thing. And basically after that the Delhi Sultanate takes place. So that kind of period starts with the medieval, and it ends in around say 15th century easily. After 15th century we see advent of British in the 16th century, and for foreign forces, and from there we can have a clear idea like how the Britishers came into the picture of Indian history, and from there we start the period called modern India. So I think the first chapter which we will discuss is the advent of Europeans in India. So why do Europeans come to India? इसके लिए आपको एक बहुत important चीज ये समझना होगा. Fall of Constantinople 1453 में सुल्तान महमद फाती he captures the city of Constantinople. Now Constantinople is a very important city which is in between the Asia and Europe and the Bosphorus Sea. आप लोग हमेशा न्यूज़ में सुनते होंगे. And the fall of Constantinople से ये हुआ, the Ottoman Empire had a complete control over the trade routes of Europe. तो जिसके वजह से क्या हुआ, the Europeans were finding it very difficult to have a trade through Asia and Africa, because the Constantinople was under the rule of Ottoman Empire. So Ottoman Empire was, what they were doing is they were levying heavy taxes on all the items which were being brought for trade into Europe. So कोई भी सामान जब एशिया से खरीद के यूरोप में बिक्री हो रहा है तो थ्रू ऑटोमन एम्पायर जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ट्रेड लग जा रहा है, एंड दे आर फेसिंग ए कॉन्सिक्वेंट हेवी लॉस ओवर देयर इन यूरोप. सो बेसिकली दिस कैटापल्टेड द राइज ऑफ एज ऑफ एक्सप्लोरेशन अराउंड 1400-1450 के टाइम पे, when Spain was नेविगेशन में बहुत आगे जा चुका था, पोर्चुगल एंड स्पेन. So basically what happened is many voyages started happen, and then there was a accidental discovery of America by Americus Vespucius, and so on and so forth. So Spain and Portugal constant struggle में थे एक दूसरे के, क्योंकि दोनों ही एक्सप्लोर कर रहे थे, दोनों ही एक ही जगह पहुंच रहे थे, आगे पीछे पहुंच रहे थे, तो एक तरह का झगड़ा वगड़ा हो रहा था. So basically the pointer for you is Treaty of Tordesillas. Treaty of Tordesillas is 1494. स्पेन एंड पोर्चुगल डिसाइड्स कि भाई हम लोग एक काम करते हैं, दुनिया का जो स्पेस सी रूट है उसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, इधर का हिस्सा तुम्हारा, इधर का हिस्सा मेरा. सो व्हाट हैपेंस इज एक इमेजिनरी लाइन वो लोग ड्रॉ करते हैं अटलांटिक के थ्रू, एंड उसके वेस्ट में ईस्ट में जो एरिया पड़ रहा है, मतलब इंडिया, चाइना, XYZ, इंडोनेशिया, दैट फॉल्स विद द पोर्चुगल. एंड उसके वेस्ट में जो एरिया पड़ रहा है जैसे कि ब्राजील वगैरह, अर्जेंटीना, न्यू फाउंडलैंड ऑफ अमेरिका, कनाडा, दैट फॉल्स विद द स्पेन. And hence you can see there is a Spaniard population in North America, basically South America. So this is what happens. So what happens is Treaty of Tordesillas 1494. Let's go to explore. So this is a small mnemonics. 1494, let's go to explore. Treaty of Tordesillas is 1494, and let's go to explore. Now what happens is Portuguese first time arrives in India in 1498. That is Vasco da Gama, and he comes in the shore of Calicut, and the king Zamorin उस वक्त वहाँ पे था, and then he landed in the port of Calicut, and he bought many items from there, spices, XYZ, and then he traded back to Portugal, and a lot of money he received, and he said his friends कि so and so India में ऐसा ऐसा है, and there is a local king. So then they again came back, and कैननोर में दे बिल्ट अप ए फैक्ट्री. 2 साल के बाद
कैब्रल करके एक अल्फ्रेडो पैब्लो कैब्रल 1500 में ही व्हाट ही डिड इज ही सीज्ड सम, वो इंडिया आया और इंडिया के बाहर जो है अरब ट्रेडर्स का काफी चल रहा था. मतलब बेसिकली अरब ट्रेडर्स एंड टर्क ट्रेडर्स विल गो टू टर्की एंड दैट्स हाउ. So basically the median of the trade of Asia and Europe was with the Turks and Arabs. So the Arab traders were there and basically एक तेलुगु मूवी भी आया इसमें अभी मलक्कर something like that. तो उसमें वो Muslim traders had a good rapport with the Arab traders. Nonetheless, so coming back to the point, so 1500 में Cabral seized some ships outside the Indian coast and फिर झगड़ा वगड़ा करके he tried to establish his power. Now the next third person who was very important after Vasco da Gama and Cabral was Almeida, Francisco de Almeida. Francisco de Almeida was basically a person who was very imperialistic kind of nature and इसको पता था कि ट्रेड रेट जो है बाद का बात है, पहले तो ताकत हासिल करना है. So I think he had a policy in mind which is called blue water policy. तो इट्स लाइक कि अगर इंडिया के ट्रेड पे काबू करना है तो देन यू हैव टू हैव अ फुल कंट्रोल ओवर द इंडियन ओशन. सो दिस ब्लू वाटर पॉलिसी व्हाट ही डिड इज बेसिकली द इंडियन ओशन में इजिप्ट का नेवी और गुजरात का नेवी उस टाइम पे इंडिया में मुगल एम्पायर चल रहा है, राइट. इट इज द रूल ऑफ basically Aurangzeb and then Shah Jahan and so on and so forth. So this is that time in the Indian period when the Mughal Empire is still there. It will wane out within the next 100 years, ठीक है. But this is what is happening in the backdrop, ठीक है. So गुजरात का जो नेवी था और इजिप्ट का नेवी था, ये लोग मिलके जो है सोचा कि पोर्चुगीज को हरा देंगे, but they could not defeat me. So Francisco de Almeida was the first person who had a fight with so-called Indian people, the Indian Navy. And he defeated the combined armies of Egypt and Gujarat. ठीक है. After that, Nino da Cunha, he came to India. तो basically after 20-30 साल में ट्रेड चलता रहा. So Nino da Cunha is a very important person because what he did is बीजापुर का जो सुल्तान था उसके हाथ में गोवा था. हम लोग जब गोवा जाते हैं तो there is a Chapora Fort दिल चाहता है Chapora. It's not Chapora, it's शाहपुरा. ठीक है. तो बीजापुर का जो सुल्तान था शाह, तो उसका वो फोर्ट था. सो व्हाट नीनो द कुन्हा से डिड वाज ट्रीटी ऑफ बेसिन, नॉट दैट मराठा वाला बट ट्रीटी ऑफ बेसिन फॉर गोवा. उसमें वो उसको गोवा मिल गया. दैट इज इन 1537. सो बेसिकली बाय द एज ऑफ 37 वी कैन गो टू गोवा एंड आफ्टर दैट यू आर इन द मिड लाइफ क्राइसिस एंड यू डोंट गो टू गोवा एनीमोर. सो दैट इज 1537. नाउ दिस इज द स्टोरी ऑफ हाउ पोर्चुगीज गॉट फुटहोल्ड इन इंडिया. Now coming to the next people who came were basically Dutch. So what happened is Dutch arrived around after 70 years of Portugal people. Portuguese people were the first to come to India and established foothold in 1537 in Goa, and they were the last people to go from India. Goa got independent after independence of India. So this is a very interesting fact. Nonetheless, so the Portuguese people they came in 1605 in मसूलीपट्टनम में वो लोग जो है अपना फोर्ट बनाए. ठीक है. इसके बाद केम द ब्रिटिश. ब्रिटिश केम इन द टाइम ऑफ जहांगीर. ठीक है. जहांगीर के टाइम पे जहांगीर आप ऐसे याद कर लीजिए, जहांगीर इज दुनिया का राजा. बट दुनिया में सिर्फ जहांगीर ही नहीं है, ब्रिटिश लोग भी है. एंड दैट्स हाउ ब्रिटेन एम्पायर बिकम्स द दुनिया का राजा जब वेयर द सन नेवर सेट्स, क्वीन विक्टोरिया के रूल में. सो जहांगीर के टाइम पे ब्रिटेन आया. सो 1600 के टाइम पे. सो 1608 में सर स्टीफन हॉकिंग्स एक जहाज लेके आए एंड ही मेट जहांगीर एंड सेड कि सर ऐसा बात है, हम लोग को ट्रेड करना है. द बेस्ट पार्ट वाज पोर्चुगीज जो थे they were not liked by Akbar. So yeah, Portuguese came in the time of Akbar. So Akbar was basically thoda sa he was liberal kind of person and he had a keen interest in other religion. So he allowed them to have a church in Lahore, I think. Yeah. And then he called them for a meeting कि अपना religion के बारे में कुछ बताएं, Christianity के बारे में कुछ बताएं. तो Portuguese were very hopeful to convert Akbar into Christianity, but this did not happen. And they were very optimistic कि अकबर को convert into the Christianity so that the full India becomes Christian. So this did not happen. So technically, as I told you, the capture of Constantinople in 1453. So basically there was a war going on between Islam and Christianity.
सो जितना से जितना अपना स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ा सके क्रिश्चियंस, दैट्स व्हाट दे वांटेड. सो बेसिकली इंडिया वाज अ इस्लामिक एम्पायर, मतलब the Mughal empire was a Muslim empire, and they just wanted कि they could convert it, but they could not. And in the time of Jahangir also, they wanted to meet Jahangir and converted it to even to Christianity. But what happened is basically जो हज का रूट था जिसमें मुस्लिम्स हज करने जाते थे, उसमें बहुत बार जो है इनका शिप्स वगैरह अटैक करके लूटमार कर दिया. तो जहांगीर वॉज नॉट ऑफ द वेरी हाई ओपिनियन ऑफ द पोर्चुगीज. जहांगीर वॉज नॉट ऑफ द वेरी हाई ओपिनियन ऑफ द पोर्चुगीज एंड द क्रिश्चियन. सो जहांगीर उतना मतलब भावपत्ति नहीं देता था. एंड द ब्रिटिश, व्हेन द ब्रिटिश केम टू इंडिया, सो दे कुड डिफीट द पोर्चुगीज नेवी. तो उस टाइम तक जहांगीर को लगता था यार पोर्चुगीज का नेवी तो स्ट्रांग है, चलो आर्मी स्ट्रांग नहीं है, दे कैन नॉट टेक दिल्ली, बट इनका नेवी तो स्ट्रांग है ही है. बट जब ब्रिटिश केम टू स्टीफन हॉकिंस दे केम, और आने के टाइम पे उनका झड़प हुआ पोर्चुगीज के साथ, बट देन स्टीफन हॉकिंग कुड डिफीट द पोर्चुगीज. तो जहांगीर फेल्ट वेरी गुड. ही डिसाइड कि यार चलो ये लोग तो नए लोग हैं और बेसिकली दे आर अ गुड पीपल एंड दे हैव डिफीटेड पोर्चुगीज, एंड पोर्चुगीज तो ऐसे ही अड़ंगा लगा ही रहे हैं. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट इंग्लिश वॉज वो लोग द प्योर बिजनेस के पर्पज से आए थे. उनको अपना धर्म वरम फैलाने का कोई मतलब नहीं था. ठीक है, द पोर्चुगीज केम विद द इंटेंशन ऑफ नॉट ओनली बिजनेस बट स्प्रेडिंग ऑफ द रिलीजन. ठीक है, एंड देयर वाज अ ह्यूज करप्शन इन देम. द इंग्लिश दे सिंपली केम फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, एंड बिजनेस होते होते दे गेट इंटरेक्ट इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, एंड देन दे कार्व्ड एन एम्पायर आउट ऑफ इट. तो इसमें उनका भी चालाकी था, और इंडियन एम्पायर्स का तो बेवकूफ़ी था ही था, एंड कमी तो था ही था. And nonetheless, a lot of the factors happened because of their, well-trained army, the industrialization back in Europe, and the Indians basically laid behind and they fought with पुराने ज़माना का तोप and spears and घोड़ा, but they had advanced machineries and guns. So nonetheless, coming back to the picture, it is the court of Jahangir. Sir Thomas Roe came to Jahangir, and after Thomas Roe, 1608 में Hawkins came to Jahangir. एंड हॉकिंस सेड कि सर हमें जो है बिजनेस करने का मौका दिया जाए, एंड जहांगीर वाज वेरी हैप्पी टू अलाउ हिम टू हैव बिजनेस. सो बेसिकली 1608 में दे केम, एंड देन तो यहाँ पे जब वो लोग आ रहे थे तो एक कोस्ट में दे हैड अ फाइट विद द पोर्चुगीज. दे डिफीटेड द पोर्चुगीज नेवी, एंड जहांगीर वाज इम्प्रेस्ड विथ हिम. दिस इज इन द गुजरात कोस्ट. नाउ कमिंग बैक टू द साउथ इंडिया का कोस्ट, यहाँ पे डच का मसूलीपट्टनम में ऑलरेडी उनका फुटहोल्ड था. नाउ वी विल सी 1605 में डच केम टू मसूलीपट्टनम, एंड 1611 में द ब्रिटिशर्स सेटल्ड इन मसूलीपट्टनम. सो हाउ मसूलीपट्टनम फेल आउट ऑफ डचेस हैंड? बिकॉज देयर वाज अ वॉर इन अम्बोया, दैट इज इन इंडोनेशिया, 1605 में, एंड अम्बोया में द ब्रिटिशर्स डिफीटेड द डच. सो बेसिकली आफ्टर द डिफीट ऑफ द डच, ब्रिटिशर्स और डच के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग था कि भाई फाइन, वी विल टेक इंडोनेशिया, यू गो एंड डू बिजनेस इन इंडिया. सो द डच सेटल्ड फॉर इंडोनेशिया, और उनका कहानी खत्म हो चुका है इंडिया में. एंड द ब्रिटिशर्स दे गॉट अ नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड इन मसूलीपट्टनम 1611 में. 1611 में मसूलीपट्टनम में उन्होंने बिजनेस किया, एंड देन सूरत में किया. ऑफ कोर्स देयर वाज द गुजरात का इलाका, एंड देन देयर वाज दिस मसूलीपट्टनम साउथ का इलाका. द नेक्स्ट बिग थिंग व्हिच केम टू देयर किटी was बॉम्बे in 1662. डच किंग का कैथरीन से बेसिकली शादी हुआ, एंड दहेज में बॉम्बे मिल गया ब्रिटिशर्स लोग को. सो ब्रिटिशर्स गॉट रूल ऑफ बॉम्बे. इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिटी. इट वुड डेवलप इनटू अ वेरी इंपॉर्टेंट सिटी, basically a center of cotton, and basically it's a port city, of course. So and so forth. So 1662 they developed the Bombay for themselves. Now एक और इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुआ. गोलकोंडा को जो राजा था, they also gave him a strong foothold in Golconda in the same year 1662. So as you can see, the Gujarat is there, and then Masulipattnam is there, and then Bombay is there, and Golconda is also there. इसके बाद सबसे दुखद कहानी, इसके जस्ट पहले एक और स्ट्रॉन्ग होल्ड था, विच आई जस्ट फॉरगॉट टू मेंशन. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री. इट इज द फॉर्मेशन ऑफ सेंट फोर्ट जॉर्ज इन चेन्नई. जो चंदागिरी रूलर्स जो थे, चंदागिरी रूलर्स मद्रास को रूल करते थे, एंड दे सिंपली सेड कि ठीक है आप चेन्नई में, मद्रास में अपना फुट होल्ड बनाइए, और हम लोगों को कुछ पैसा दे दीजिए, एग्जैक्टली सम अमाउंट ऑफ मनी दे जस्ट वांटेड, एंड दे सेड कि आप अपने यहाँ पर फैक्ट्री बनाइए,
and so 1639 Saint Fort George, Madras. Now you can see the British rule is basically फैल रहा है in the western part of India and southern part of India, this coast. Now the east coast is still left. Now what happens in east coast is basically they started the territories because Chandannagar mein the French had a territory in Chandannagar, so they also had an eye in the east because Bengal was the richest Suba, the richest state. So basically during the time of Shah Alam II, इसी टाइम पे मतलब 1600-1700 के बीच में डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर स्टार्ट हो चुका था, एंड शाह आलम II, दैट मोहम्मद शाह रंगीला वाज एन इनकेपेबल रूलर. सो 3 states were carved out of Mughal Empire. One was Awadh, the other was Hyderabad, and the third was Bengal, right? So basically Murshid Quli Khan, that was 1619. So 1619 में मुर्शिद कुली खान carved out an empire of Bengal. So वो अपना टेरिटरी बन गया 1619 में. So ऐसा करते करते फिर फारूक सियार नाम का एक किंग आया 1717 में. he was very stupid king basically. So what he did is इसको कुछ समझ नहीं था, and he did the blunder in 1717. It was a Magna Carta for the British Empire. They gave him not only land in rent, he also gave them power to mint coins in West Bengal, and dastak is basically like they can issue a dastak for trade कि हाँ मतलब ये ट्रेड हो रहा है, बेसिकली अ परमिट. ठीक है, दे कुड इशू द परमिट ऑल्सो. तो बेसिकली कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में हिस्सा दे दिया, कॉइन मिंटिंग में हिस्सा दे दिया, जगह दे दिया, तो काफी कुछ दे दिया. ठीक है, 1717 में जगह दे दिया. तो बेसिकली 1719 में बंगाल जो है नॉट 1719 में बंगाल अलग हो गया, एंड 1724 में हैदराबाद अलग हो गया, एंड so this was happening. So meanwhile the Britishers they had a stronghold in Bengal also. अब तो वो लोग बंगाल में अच्छा खासा धंधा करना स्टार्ट कर गए. अब तो यार बंगाल तो अपना हाथ में आ ही गया. अब बचा क्या, देखिए बचा 2-3 जगह. पहला तो हो गया साउथ में सिर्फ मद्रास तक थे आप. निजाम का जो फुटहोल्ड था वो स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड था, और मैसूर का जो स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड था वो स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड था, और मुंबई के अलावा जो पूरा महाराष्ट्र था मराठा एम्पायर का वो स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड था. सो बंगाल में तो धंधा कर लिया, बट दोस्त महाराष्ट्र में कैसे धंधा करेंगे, और हैदराबाद में कैसे धंधा करेंगे, और साउथ में कैसे धंधा करेंगे. तो इसको करने के लिए क्या हो रहा था, वहां पे ऑलरेडी फ्रेंच लोग जो है एडवांसेस कर रहे थे. तो 1740 से इन्होंने स्टार्ट किया अपना जर्नी. तो इनका पहला मकसद ये था कि फोर्ट्स बना ले इंडिया में, जो कि इन्होंने बना लिया. ठीक है, 1611 मसूलीपट्टनम, 1639 सेंट फोर्ट जॉर्ज, एंड 1662 बॉम्बे, एंड देन 1690 जॉब चारनॉक जो है इंडिया आया, कलकत्ता आया, और वहाँ पे जो है जमींदार से जो है पैसा देके खरीद लिया 3 गांव, सुतानुती, कोलिकाता, गोविंदपुर, कलकत्ता का निर्माण किया, वहाँ पे फोर्ट विलियम बना लिया. ठीक है, 1700 तक फोर्ट विलियम बना लिया. अब इसके बाद 1717 में फारूक सियार बोला कि हाँ भाई धंधा करो, दस्तक डालो, पॉइंट मिंट करो. दिस हैपेंड नाउ. अब जो है इस दौरान मुगल एम्पायर में क्या हो रहा था, मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो रहा था. शाह आलम बस नाम का रूलर रह गया था. 1719 में बंगाल अलग हो चुका था, 1724 में हैदराबाद किंग किलीच खान अलग कर चुका था. सो बेसिकली 1739 में नादिर शाह इन्वेडेड द मुगल एम्पायर. 1739 बहुत बुरी तरह रहा है मुगल एम्पायर को. 2-3 दिन तक कार्नेज हुआ, और आज के जमाने में आई थिंक 2 ट्रिलियन रुपीज के जितना पैसा वो लेके गया जो है ऊंट में और घोड़ा में. बहुत बुरा हाल हुआ. एंड आफ्टर दैट 1747 में अब्दाली ऑल्सो केम एंड डिफीटेड द मराठा. सो इट वाज वेरी क्लियर मराठा द मुगल एम्पायर का अपना कुछ था नहीं. सो 1747 में भी बेसिकली अब्दाली केम एंड फॉट मराठास एंड थर्ड बैटल ऑफ Abdali attack basically. So that was their second battle of Panipat. So basically what happens is, this is why what happens in the North India. Now coming to the South India, यहाँ पे फ्रेंच और बेसिकली इंग्लिश फोर्सेस में अब जो है झगड़ा होना स्टार्ट हो गया 1740s. ठीक है,
1740s में कार्नेटिक वॉर स्टार्ट हुआ। कार्नेटिक वॉर क्यों स्टार्ट हुआ? ब्रिटिश अटैक द फ्रेंच इन 1746। फ्रेंच फुटहोल्ड्स में ब्रिटिश लोग जो है अटैक किया और लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हुआ। 2 साल तक लड़ाई चला। ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपेल में वहाँ पे यूरोप में दोनों समझौता हुआ कि भाई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए लोगों का लड़ाई झगड़ा रुक गया, बट लड़ाई झगड़ा नहीं रुक पाया। 1 साल तक ही लड़ाई झगड़ा रुक पाया, राइट। 1749 में 1 साल बाद ही ब्रिटिश और फ्रांस एम्पायर वापस एक साथ रूबरू हो गया एंड दे हैड अ बिग वॉर, दैट वाज सेकंड कार्नेटिक वॉर। सो बेसिकली फ्रेंच का एक गवर्नर था डुप्लेक्सी वाज अ वेरी sharp kind of person and he was very diplomatic and he was the first person to get into the regional internal politics of India. So what Duplessis did is basically ब्रिटिश जो है आरकॉट में अटैक किए, ठीक है। ब्रिटिश आरकॉट में अटैक किए। आरकॉट में अटैक करने के बाद आरकॉट का एरिया को उन्होंने जीत लिया और वहाँ का जो नॉर्मल रूलर था उनको इंस्टिल कर दिया। और यहाँ पे जो है कर्नाटका का एरिया में यहाँ पे जो है किंगडम का किंगशिप के लिए लड़ाई चालू हो गया। तो चंदा साहेब और मुजफ्फर जंग को जो है डुप्लेक्सी सपोर्ट करने लगा और मोहम्मद अली को ब्रिटिश सपोर्ट करने लगा। तो इन दोनों में जंग हो गया। जंग होने के बाद जो है बेसिकली क्लियर नहीं रहा कौन जीता, बट British got the foothold in Arcot and moreover Duplessis could help the confederation of Chanda Sahib and Muzaffar Jung to take the power and इसके बदले में Duplessis को कृष्णा वैली के नीचे वाला जितना भी एरिया है उसका जो है गवर्नर बना दिया गया। तो Duplessis एक बहुत बड़ा एरिया कव आउट कर चुका था एक जंग से। तो अंग्रेज लोग तो देखा यार ये तो सही है, परमिशन ले लेके तो छोटा छोटा फोर्ट मिल रहा है, जंग करने से तो पूरा का पूरा एरिया मिल जा रहा है, ठीक है। 1747 में ये हुआ, ठीक है। नाउ 1747 में जब ये हुआ तो 1756 में अब जो है ब्रिटिश के समझ में आ गया दोस्त जंग वंग करके मामला खत्म करना पड़ेगा, ऐसे परमिशन ले लेके नहीं चलेगा। अब अलीवर्दी खान के जब डेथ हो गया तो सिराजुद्दौला जो है 20 साल का एक बंदा था, 20 साल का बंदा एकदम बंगाल में रूल करने लगा और बहुत अच्छे से रूल करने लगा और बहुत तैश में था। तो उस टाइम बंगाल का सिचुएशन ये था कि बंगाल का जो बिजनेस क्लास था, जगत सेठ, 2 आदमी था जगत सेठ, बेसिकली जैन मरवाड़ी बिजनेसमैन, तो उनका जो है काफी धंधा चलता था। तो जब अलीवर्दी खान था तो वो लोग काफी सपोर्ट करते थे अलीवर्दी खान को और कहीं ना कहीं वो लोग जो है पैसा देते थे, डेट फाइनेंसिंग करते थे। काइंड ऑफ बैंकिंग सिस्टम इवॉल्व हो चुका था, डेट फाइनेंसिंग करते थे। सो बेसिकली ब्रिटिशर्स को अगर सामान खरीदना है, ब्रिटिशर्स के पास पैसा नहीं है तो वो लोग डेट फाइनेंसिंग करते थे, फिर ब्रिटिशर्स सामान खरीदते थे, फिर बेचते थे, फिर उनको पैसा देते थे, उनको मुनाफा होता था, ठीक है। और इससे स्टेट भी काफी अच्छा चलता था और ऑफ कोर्स जगत सेठ लोगों को तो फायदा होता ही होता था। तो वो लोग अलीवर्दी खान के साथ मिलकर बैठ के पॉलिसी बनाते थे। तो इस तरह जो है गरीब और गरीब होता जा रहा था, अमीर और अमीर होता जा रहा था। बट सिराजुद्दौला को ये चीज समझ में नहीं आया। तो सिराजुद्दौला जो है बहुत तरीके से उसको जो जगत सेठ लोग को हटा देना चाहिए था, बट वो ओपन डिफायंस में आ गया जगत सेठ लोग के साथ, ठीक है। ये हुआ। अब जगत सेठ लोग का पूरा हेल्प था ब्रिटिशर्स लोग को, क्योंकि फोर्ट विलियम में ही धंधा होता था, बिजनेस होता था और जगत सेठ लोग को ब्रिटिशर्स लोग से ही फायदा था। तो वो लोग लॉयलिस्ट नहीं रहे हैं सिराजुद्दौला से, ठीक है। तो वो लोग जो है ब्रिटिशर्स को हेल्प करने लगे, ब्रिटिशर्स का हिम्मत और बढ़ने लगा। तो सिराजुद्दौला के जो ओपोनेंट था घसीटी बेगम, ठीक है, वो जो है भागी फिर रही थी। तो ब्रिटिशर्स लोग जो है घसीटी बेगम को जगह दे दिया रहने के लिए। तो ये दिस वाज सीन एज अ डायरेक्ट चैलेंज टू द सॉवरेनिटी ऑफ सिराजुद्दौला। सो व्हाट ही डिड इज ही डिसाइडेड कि यार अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, ब्रिटिशर्स घसीटी बेगम को हेल्प कैसे कर दिए और जगत सेठ लोग भी ब्रिटिशर्स को हेल्प कर रहा था। तो बेसिकली व्हाट हैपेंड इज ही जस्ट मार्च हिज आर्मी इनटू द फोर्ट विलियम और उस टाइम ब्लैक होल ट्रेजेडी हुआ 1756 में, जिसमें लगभग 146 ब्रिटिशर्स मारे गए। सो आफ्टर दिस डेथ क्लाइव वाज देयर इन मद्रास। ही गॉट द न्यूज कि यार फोर्ट विलियम में जंग हो चुका है और मेरे 146 लोग मारे जा चुका है, ठीक है, फाइन। ही जस्ट बोर्डेड हिज शिप, जहाँ पे लोग अपना फोर्ट विलियम में अच्छा जो है आर्मी छोटा मोटा बना चुके थे और ट्रेड के नाम पे बहुत सारे गन वन ला के रखते थे। चुपचाप से जहाज पकड़ा, मद्रास से हुगली के रास्ते पानी से कलकत्ता में आ गया। अब कलकत्ता में जंग होने की तैयारी चालू हो गया। जंग होने के पहले जगत सेठ जो है ब्रिटिशर्स लोग को बोले कि हाँ आपको ओवरथ्रो कर देंगे, आप दूसरा पपेट रूलर लाइए जिससे मेरा अच्छा बिजनेस चले। पपेट रूलर डिसाइड हो गया, मीर कासिम उसका दामाद।
और बैटल ऑफ पलासी 1757, द बैटल आई थिंक डिड नॉट इवन टेक प्लेस फॉर 2 hours एंड इट वाज अ डिसाइडेड फेट दैट सिराजुद्दौला हार जाएगा और सिराजुद्दौला का उसको शहीद कर दिया गया एंड मीर कासिम को नवाब बना दिया गया। सो मीर कासिम बिकम्स द नवाब एंड मीर कासिम नवाब बनने के बाद क्लाइव जो है डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट कर दिया। मीर कासिम को बोला कि तुमको इतना लाख रुपया देना पड़ेगा और तुमको पेंशन देना पड़ेगा और हम लोग को बिजनेस देना पड़ेगा और डुअल एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब निजामत दीवानियत दोनों ब्रिटिशर्स के हाथ में है, बट अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं है भाई। क्वेश्चन जो पूछना है आप मीर कासिम से पूछिए, मीर जाफर से पूछिए, ठीक है, मीर जाफर से पूछिए और नॉट मीर कासिम, सॉरी, मीर जाफर से पूछिए और जो है दीवानियत जो है अब मेरा हाथ में है, निजामत भी मेरा हाथ में है, ठीक है, बट कोई अकाउंटेबिलिटी हम नहीं लेंगे। So 1757 में what happened is Britishers gained a strong foothold in Bengal. Now there is one more strong foothold which is below the river, Krishna and Godavari, जो ऑलरेडी किसके हाथ में, डुप्लेक्सी के हाथ में। अब तो डुप्लेक्सी को हराना पड़ेगा, अब भाई बंगाल आ गया है तो साउथ भी तो लेंगे ना। तो ब्रिटिश 1757 में डिफीटेड पलासी। 1758 में थर्ड कर्नाटिक वॉर हैपेंड, ठीक है। फ्रांस कैप्चर्ड विजयनगरम। विजयनगर में ब्रिटिशर्स का एक फोर्ट था, सेंट डेविड फोर्ट। तो सेंट डेविड फोर्ट को फ्रांस कैप्चर कर लिया। बस ब्रिटिशर्स को तो चाहिए था, अभी ताजा लड़ाई झगड़ा करके जीत के देखे थे, अभी तो पूरा पैसा वैसा सब हाथ में था। बैटल ऑफ वांडी वॉश में पूरा वॉश हो गया। 1716 में पूरा वांडी वॉश में खत्म कहानी फ्रांस का, ठीक है। सो दिस इज हाउ 1757 हैपेंड इन पलासी एंड थर्ड वॉर 1758 द थर्ड वॉर। 1760 तक ये लोग बैटल ऑफ वांडी वॉश कर चुके हैं, ठीक है। So this is how the Carnatic War was won and the French were put to rest. Now after that what happened is the next step was Battle of Buxar, ठीक है। तो मीर जाफर के बाद मीर कासिम हुआ। मीर कासिम was a smart ruler. He understood कि भाई अंग्रेज किसी का नहीं है और ये लोग जो है किसी का नहीं है और मेरे को जो है एक अलायंस फॉर्म करना पड़ेगा। तो सबसे पहले वो मुर्शिदाबाद से हटा के मुंगेर में कैपिटल बनाया। मुंगेर वाज इन बिहार एंड इट वाज क्लोज टू द अवध। तो मुंगेर में कैपिटल बनाया। मुंगेर में जो आर्म्स वगैरह भी बनते थे, बंदूक वगैरह भी बनते थे, तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ही हैड अ गैरिसन सिटी इन हिज नेम। सो ही चेंज हिज कैपिटल टू मुंगेर एंड आफ्टर दैट ही मेड अ ग्रैंड अलायंस विद द अवध एंड द मुगल, ठीक है। अवध एम्पायर के साथ और मुगल के साथ, शाह आलम के साथ, दे डिसाइडेड कि यार मिलके ब्रिटिशर्स को खत्म करते हैं एंड दैट्स हाउ दे चैलेंज द ब्रिटिशर्स इन बैटल ऑफ बक्सर इन 1764, बट दिस वाज द फाइनल नेल इन द कॉफिन एंड द कन्फेडरेशन लॉस्ट। So basically Battle of Buxar happened in 1764 and the Treaty of Allahabad was signed. Treaty of Allahabad was a humiliating treaty जिसके हिसाब से although Awadh was left as a buffer state because they did not want to directly rule Awadh, because had they ruled Awadh they would have to secure its borders also and the foreign invasions were happening, so they did not want to rule Awadh, but they took it as a buffer state because Sikh were there, ठीक है। तो सिख एम्पायर वॉज देयर। तो सिख एम्पायर को तो वो लोग बोला था कि बाद में देख लेंगे, ठीक है, जो कि वो लोग 20-30 साल बाद 1799 में देख ही लेते हैं एनीवेज। तो उस टाइम वो लोग सिख एम्पायर से डील नहीं करना चाहते थे, तो अवध को एक बफर स्टेट बनाया, बंगाल को तो पूरा रूल कर लिया एंड मुगल को जो भी पेंशन में वो कर दिया, भेज दिया और दे एक्सट्रैक्टेड हेवी मनी फ्रॉम मुगल एम्पायर। Now, after the subordination of Mughal Empire in 1757, there was one empire which was very, very important. The empire was Mysore and Marathas. So, the next step after 1764 was Mysore. अब मैसूर को देखना बहुत important था। तो 1764 के जस्ट बाद आ गया 1767 एंग्लो मैसूर वॉर। तो उस टाइम जो है हैदर अली नाम का एक जनरल था एंड वोडियार डायनेस्टी वाज रूल्ड, मैसूर वाज रूल्ड बाय द वोडियार डायनेस्टी इन द 1600, बट ड्यू टू द incompetent kings, Hyder Ali rose to the ranks of the king and declared himself the king. So Hyder Ali was de facto king of the Mysore Empire and basically यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है, मराठा, निज़ाम और मैसूर, ये तीनों जो है बेसिकली एक दूसरे के फ्रेंड्स भी नहीं थे, अलायंसेस भी करते थे, ब्रेक भी करते थे, धोखा भी देते थे, साथ भी देते थे, वेरी स्टूपिड काइंड ऑफ like semantics happened over there. So the first empire, the British and versus the Mysore. So what happened is basically Marathas and Nizam को Britishers बोला कि मैसूर को अटैक करेंगे
and they were like, okay. But Hyder Ali was very, very smart. He just went and neutralized the Nizam, and he neutralized the Marathas also. So the British had to fight Hyder Ali direct. And 1767 में Hyder Ali just marched in Madras, sent Fort George, and he captured the Madras. उसके बाद the British were very humiliated, and they had to sign the Treaty of Madras in 1767 and give back the area to Hyder Ali. So after that, the first war of Anglo-Mysore War 1767 was basically won by Hyder Ali, and Treaty of Madras happened. Now the second after Treaty of Madras में क्या हुआ था, उसके बाद basically उसके बाद ब्रिटिशर सेड कि ठीक है आपको अगर कोई भी अटैक करेगा, मराठा हो या निज़ाम हो, तो हम लोग आपके पूरा हेल्प करने आएंगे. हैदर अली सेड सो फाइन, ठीक है. फिर हैदर अली बेसिकली died. So after that, what happened is the Tipu Sultan rose to the prominence, and the Tipu Sultan took hold the realms of his father's empire, Mysore. And after that, ब्रिटिशर्स वेयर टू हेल्प मैसूर. तो उसमें क्या हुआ था, ट्रावनकोर का किंगडम से कोई एक जगह का जो है somebody bought the place. So Travancore Empire bought a place which was supposed to be in Mysore's empire. So this was a direct attack on the sovereignty of Mysore. So what Mysore did is they attacked the king over there in Travancore. So जब Travancore का king को attack किया, the Britishers did not come to the help of Tipu Sultan. Tipu Sultan को समझ में आ गया कि Britishers cannot be trusted. So Tipu started finding a new ally, which he got in the French. He supported the French. He trusted the French more. He was very much attracted with the idea of French Revolution which happened over there, and liberty, fraternity. So he was very much happy with the idea of French Revolution, and he saw the French as a liberal, evolved human beings. So he turned to the idea of French, and उनसे जो है बातचीत करने लगा, और उनसे जो है exchange करने लगा, arms exchange करने लगा, और ideas exchange करने लगा. So this the French the sphere of influence was coming with Tipu, and this was very alarming with the British. So basically Britishers attacked the French, and after that Travancore के साथ जो भी जंग वंग हुआ 1790 में, then Treaty of Seringapatam happened. इसमें Tipu Sultan had lost considerable amount of land. After that he was forced to sign the Treaty of Seringapatam in 1790. Treaty of Seringapatam में जो है बहुत सारा ज़मीन टीपू सुल्तान का चला गया, and meanwhile जो है टीपू सुल्तान said कि ठीक है फाइन, I'll take this time to build my empire. So 1719 is Treaty of Seringapatam. इस टाइम पे वेलेस्ली आ चुका था. वेलेस्ली was a very dangerous king, and he simply said कि ठीक है फाइन, if we have to take hold of all the empires, let's have something called subsidiary alliance. So subsidiary alliance was a kind of alliance जिसमें जो है ब्रिटिशर्स बोलते थे कि ठीक है आपके पास घोड़ा बारूद एंड आर्मी बंदूक नहीं है, वी विल गिव दैट. आप अपने मेजर सिटी में हमें एक गैरिसन दीजिए जहाँ पे मेरा आर्मी रहेगा, मेरा आर्मी का खर्चा आप उठाइए, कभी भी जंग होगा मेरा आर्मी जो है आपके लिए लड़ेगा, और मेरे को बिना बताए आप किसी भी दूसरे फॉरेनर से दोस्ती नहीं करेंगे, और हम आपको प्रोटेक्शन देंगे. सो बेसिकली ब्रिटिशर्स वेर रेजिंग एन आर्मी ऑन मनी ऑफ द अदर एम्पायर ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ सेविंग देम फ्रॉम अ सो कॉल्ड वॉर, and meanwhile cutting their ties from the other empire. So this is the basically treaty of subsidiary alliance. Now 1790 में तो सेकेंड वॉर ऑफ टीपू सुल्तान, फॉल ऑफ सेरिंगपट्टनम हो गया. मीनवाइल 1780s 90s में एक और फ्रंट स्टार्ट हो चुका था ब्रिटिश का. दैट वाज द मराठास. So they started dealing with the Marathas also. So what happened is basically the capture of Maratha began in 1775. So just after the defeat of defeat of Hyder Ali, they saw Maratha Empire 1775 में, and they started capturing the Marathas.
So the first war, for the first Marathan war happened is basically when it happened. Basically Raghunath Rao and Narayan Rao and Raghunath Rao, ये दो जो है किंग्स थे. The king, the पेशवा ऑफ मराठास had died and basically there was a succession. तो बेटा जो है नारायण राव था एंड चाचा जो है रघुनाथ राव थे. So basically there are people who were supporting Raghunath Rao, there are people who were supporting Narayan Rao. So basically Marathan Empire was ruled by Peshwa. Basically it was a confederation of council of ministers and there was a prime minister kind of thing who was Nana Sahib. So Nana Sahib जो है, Nana Sahib supported Narayan Rao and Raghunath Rao was supported by Nan. So basically what happened is यहाँ पे भी ब्रिटिशर्स का एक कमी हम लोगों को पता चलता है. Basically there was a Bombay faction of the British and there was a Calcutta faction of the British. तो यहाँ पे जो है गवर्नर, इसीलिए हम लोग देखते हैं गवर्नर जनरल becomes the governor general of Bengal and other governing bodies comes inside the governor general of Bengal. So this is what happens. So basically what happens is when we will discuss the timeline of governor generals, उस टाइम ये स्टोरी को हम लोग वहाँ पे जाके जिगसॉ पजल के जैसा पंच करेंगे and then you will understand what's happening. Right. So basically Raghunath Rao जो है Bombay faction of the British Empire supported Raghunath Rao with Surat Treaty 1775 and the Calcutta faction supported Nana Fadnavis with Purandar Treaty 1776. ठीक है. So the Bengal Bombay supported Raghunath Rao 1775 and the Calcutta section supported Nana Fadnavis 1776 Purandar Treaty. तो इसके बाद जो है ये स्टूपिडिटी हो गया और आपस में झगड़ा वगड़ा हो गया. नाना फडनवीस को समझ में आ गया ब्रिटिशर्स लोग यार उसको भी सपोर्ट कर रहा है, मेरे को भी सपोर्ट कर रहा है. तो नाना फडनवीस रैन टू द फ्रेंच. तो जब नाना फडनवीस रैन टू द फ्रेंच, देन ब्रिटिशर्स बेसिकली अटैक्ड विद द हेल्प ऑफ Raghunath Rao. Basically they attacked the Nana Fadnavis and then Treaty of Salbhai happened 1782 Salbhai happened. ठीक है. आफ्टर दैट ये 1782 में हुआ. 1782 में होने के बाद जस्ट 22-23 साल बाद भी सेकेंड वॉर हुआ. उससे पहले हम लोग देख लेते हैं 1782 में फर्स्ट वॉर ऑफ 1767 में जो है फर्स्ट वॉर एंग्लो मैसूर वॉर हो चुका है. 1769 में ट्रीटी ऑफ मद्रास हो चुका है. आफ्टर दैट 1775 में फर्स्ट वॉर ऑफ मराठा हो चुका है. Now we will go to the second war of the Mysore Empire, which I said English had failed to help the Mysore Empire, and then there was a war with they took help of French, and that's how Wellesley was not happy, and Hastings was not happy, and then they attacked the Mysore Empire and Treaty of Seringapatam 1790 में सेरिंगापट्टनम का ट्रीटी हुआ और ठीक 10 साल बाद सेकेंड वॉर ऑफ मराठा एम्पायर स्टार्टेड. ठीक है. सो सेकेंड वॉर ऑफ मराठा स्टार्टेड इन 1803. रघुनाथ राव तो जीत गया था. रघुनाथ राव जीतने के बाद उनका डेथ हो गया एंड सन ऑफ रघुनाथ राव बाजी राव टू. सो बाजी राव टू वाज बेसिकली वेरी हॉट हेडेड एंड नॉन वेरी डिप्लोमेटिक काइंड ऑफ रूलर. So what he did is there were confederations of Marathas. So they were like Holkars, Sindhyas, so Holkar, Sindhyas, and Gwalior ka. So there were a lot of factions of Marathas, the names of which will be in screen. So nonetheless, so what happened is रघुनाथ राव का जो बेटा था बाजी राव टू, ही आफ्टर कमिंग टू पावर ही जस्ट सिंपली किल्ड होलकर. ठीक है. तो होलकर को मार दिया. अब होलकर तो यार गुस्सा हो गया. होलकर जो है नाना फडनवीस का और सबके मदद से जो है बोला कि अब तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं. सो दे अटैक्ड पूना. सो दे अटैक्ड पूना एंड दे जस्ट डिस्ट्रॉयड द पूना. आफ्टर डिस्ट्रॉइंग द पूना, after destroying the Pune, Raghunath Rao ka beta Baji Rao was on a run and he simply went to the British and asked for the help. British said कि आप जो है ट्रीटी ऑफ बसाइन के अंडर सब्सिडरी में आ जाइए, उसके बाद हम आप लोगों को देख लेंगे. तो बाजी राव टू जो डिड द ट्रीटी ऑफ बसाइन इन 1803 and after that the British protected him. ठीक है. Nonetheless, after that matter subsided. The third war happened in 1817.
उससे पहले उससे जस्ट पहले देयर वाज द थर्ड वॉर व्हिच हैपेंड विद द Mysore Empire. That was the final third Anglo-Mysore war. And basically in that what happened is Lord Wellesley offered the subsidiary alliance to Tipu, and Tipu simply rejected it outrightly. So there was a war, an attack on Tipu Sultan in 1799, and it was a fall of Seringapatam, and Tipu had died as a martyr fighting the British Empire in 1799. 1799 के just 3-4 साल बाद 1803 में second war happened, and Treaty of Bassein में they got control over Maratha Empire. The third and the final blow in the nail happened with the third and the final war of Anglo-Maratha. That was in 1817 due to Pindaris. So by this time Wellesley had gone and Hastings was here. So the Pindaris were, what are the Pindaris? वो एक मूवी है सलमान खान का वीर, जिसमें सलमान खान पिंडारी बनता है. So Pindaris were a group of warring clan जो है मराठा एम्पायर के टाइम पे मर्सनरीज की तरह काम करते थे, और वो जंग करते थे और लूटते थे. एंड they were very honest, but they were like kind of unruled mercenaries. So अभी जब मराठा एम्पायर ट्रीटी ऑफ बसेन के बाद it just broke down, and there was no money and there was no business. So Pindaris were let loose, and the Britishers were not able to control them. And Rajput had some problem with the Pindaris basically, and there was nobody was able to control them. So but the Pindaris were an extension of Marathas. They were like the brothers of Marathas. So the Britishers wanted to control Pindaris, and so they attacked Pindaris, and this was seen as a challenge, as a direct challenge to the Marathas. So the Peshwaship under the leadership of Gwalior and Pune and Holkars, everybody just rallied up, and they said we'll have a final fight against the British. And so they had a final third Anglo-Maratha war in 1817, but to the sad result of it, 1817 the Britishers destroyed everyone, and it ended up with the 1817 Treaty of Pune, Treaty of Gwalior, and Treaty of Mandsaur. So that's how the Maratha Empire got finished. That's starting with the Bengal Empire and the Mysore and the Maratha Empire. So here we arrive at year 1817. इस दौरान जो है ब्रिटिश एम्पायर में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है. 1772, 1792, 1813, 1833, 1909, 1919, 1935 and then 1947. ये जो है बेसिक regulating acts and acts of British India, 1772, 1792, 1803 Charter Act. So we will read these acts and we'll try to put this expansion. So there is this act which is happening in Bengal, then Maharashtra is coming in, then Madras is coming in, and then there are 3 subas, and then Awadh is coming in, then the full of India. इस तरह से the Bengal से they are just going in the whole of India, and meanwhile the expansions and expansion के साथ साथ यहाँ पे आप लड़ाई झगड़ा fall of British Empire. So this is the basically the backbone. The backbone will be all the administrative steps. Administrative steps के साथ साथ आपका expansions, wars, Bengal, Mysore, Maratha, Sikh, इस तरह से. और यहाँ पे हम लोग देखते जाएंगे जो how the people reacted. So यहाँ पे how the kingdoms reacted, how the peoples reacted, and how the Britishers goes. इस तरह का एक chart I will just prepare and I will share it to you. And I just take a break and then we'll get to the next lecture. Thank you.